بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو ڈرامہ کا میراتھن کلاس ہے۔ بس ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور میں پوری امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اردو ڈرامہ سے جو بھی سوال آئے گا بس وہ اسی ویڈیو میں درج ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، آپ کا ایک بھی سوال انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اندر سبھا کس کے عہد میں لکھی گئی؟ اندر سبھا کس کے عہد میں لکھی گئی؟ تو اندر سبھا ایک ڈرامہ کا نام ہے، اور یہ ڈرامہ واجد علی شاہ کے عہد میں لکھی گئی ہے۔ واجد علی شاہ کے عہد میں اندر سبھا ڈرامہ لکھی گئی ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ ایگزام کے اندر آپ کے سامنے 5 آپشن دیے جائیں گے، ان میں سے جو صحیح ہوگا اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیے گا، لیکن یہاں پر میں نے جو اس کا مین جواب ہے، جو اصل جواب ہے، اسی کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے گا تو پھر آپ کے سامنے چاہے 4 آپشن ہو، 5 آپشن ہو، 10 آپشن ہو، آپ آرام سے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے اس طرح لکھنے سے آپ کا جو ٹائم بھی بچ جائے گا۔ 5 آپشن میں ذرا ٹائم زیادہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کا ٹائم بچ جائے گا۔ تو سمجھ گئے؟ تو پہلا سوال تھا، اندر سبھا ایک ڈرامہ ہے جو واجد علی شاہ کے دور میں عہد میں لکھی گئی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 پہ، اندر سبھا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ اندر سبھا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اندر سبھا ایک ڈرامہ کا نام ہے۔ اندر سبھا ایک ڈرامہ کا نام ہے۔ سوال نمبر 3 پہ ہے کہ ڈرامہ اندر سبھا کے مصنف کون ہے؟ مصنف کے معنی لیکھک، لکھنے والا۔ تو ڈرامہ اندر سبھا کے مصنف ہے امانت لکھنوی۔ کون ہے؟ امانت لکھنوی۔ اندر سبھا کے جو مصنف ہے، جو لیکھک ہے، جو لکھنے والے ہیں، کون ہے؟ وہ امانت لکھنوی ہے۔ سوال نمبر 4 پہ ہے، مندرجہ ذیل میں منظوم ڈرامہ کون ہے؟ منظوم یعنی نظموں کے انداز میں، شعر کے انداز میں جو لکھا گیا ہے ڈرامہ، وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب اندر سبھا۔ کیا ہے؟ اندر سبھا۔ اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ امانت لکھنوی لکھنے والے ہیں۔ سوال نمبر 5 پہ ہے کہ ڈرامہ اندر سبھا جو امانت لکھنوی کی تصنیف ہے، ڈرامہ اندر سبھا جو امانت لکھنوی کی تصنیف ہے، اس میں کتنی پریاں ہیں؟ کتنی پریاں ہیں؟ اس کا جواب 4 پریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ چونکہ لمبا کلاس ہے اور اسی ویڈیو میں سے آپ کا سوال پھنسے گا، اس لیے آپ اس کو غور سے سنیے۔ سوال نمبر 6 پہ ہے کہ ڈرامہ اندر سبھا میں شہزادہ گلفام پر کون سی پری عاشق ہوتی ہے؟ ڈرامہ اندر سبھا میں شہزادہ گلفام پر کون سی پری عاشق ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سبز پری۔ سبز پری یعنی ڈرامہ اندر سبھا میں 4 پریوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو انہی میں سے ایک پری ہے سبز پری۔ تو یہ سبز پری جو ہے شہزادہ گلفام پر عاشق ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 7 پہ ہے کہ ڈرامہ اندر سبھا میں راجہ اندر کی سبھا میں انسان کی موجودگی کی اطلاع یعنی خبر راجہ اندر کو کون دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے لال دیو۔ لال دیو۔ ڈرامہ اندر سبھا میں جو راجہ اندر کی سبھا میں، ڈرامہ اندر سبھا تو ایک ڈرامہ کا نام ہے، اور راجہ اندر کی سبھا میں انسان کی موجودگی کی خبر، موجودگی کی اطلاع راجہ اندر کو کون دیتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ لال دیو۔ لال دیو۔ سوال نمبر 8 پہ ہے کہ اردو کا باضابطہ پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ اردو کا باضابطہ پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو اس کا بھی جواب وہی ہے، اندر سبھا۔ اندر سبھا۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ کمنٹ کر کے آپ اس کا جواب دیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، امانت لکھنوی ہے۔ سوال نمبر 9 پہ ہے کہ ڈرامہ اندر سبھا
अमानत लखनवी ने कब तहरीर फरमाई थी? ड्रामा इंद्र सभा अमानत लखनवी ने कब तहरीर फरमाई थी, कब लिखा था? इसका जवाब है 1852 ईस्वी में। ड्रामा इंद्र सभा को 1852 ईस्वी में अमानत लखनवी ने लिखा था। सवाल नंबर 10 पे है, आगा हसन अमानत लखनवी, यानी अमानत लखनवी का पूरा नाम है आगा हसन अमानत लखनवी। आगा हसन अमानत लखनवी ने किसकी फरमाइश पर ड्रामा इंद्र सभा तहरीर फरमाई थी? किसकी फरमाइश पर, किसके कहने पर ड्रामा इंद्र सभा तहरीर फरमाई थी? तो इसका जवाब है मिर्जा आबिद अली इबादत। मिर्जा आबिद अली इबादत के कहने पर आगा हसन अमानत लखनवी ने इंद्र सभा ड्रामा को लिखा था। समझ गए? और किसके अहद में लिखा था? वाजिद अली शाह के अहद में लिखा था। सवाल नंबर 11 पे है कि ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितने देव हैं? कुल कितने देव हैं? तो इसका जवाब है 2। 2 देव का जिक्र किया गया है। इससे पहले आपने पढ़ा कि 4 परियों का जिक्र किया गया है। ड्रामा इंद्र सभा में 4 परियों का जिक्र किया गया है और 2 देव का जिक्र किया गया है। आगे है ड्रामा अनारकली। तो गोया के ड्रामा इंद्र सभा के बारे में आपने पढ़ लिया कि ड्रामा इंद्र सभा को लिखने वाले कौन है? आगा हसन अमानत लखनवी। आगा हसन अमानत लखनवी लिखने वाले हैं। कब लिखा गया? 1852 ईस्वी में। किसके अहद में लिखा गया? किसके अहद में लिखा गया? तो वाजिद अली शाह के अहद में लिखा गया। और किसकी फरमाइश पे लिखा गया? तो मिर्जा अली इबादत अली। मिर्जा अली इबादत, तो इनके फरमाइश पे लिखा गया। तो अब यहाँ से आगाज हो रहा है ड्रामा अनारकली का। ड्रामा अनारकली का और इम्तियाज अली ताज का जो सबक है उसका यहाँ से आगाज हो रहा है। तो इसका पहला सबक है ड्रामा के लिए किसकी शोहरत है? ड्रामा के लिए किसकी शोहरत है? तो आपने सुना होगा कि आगा हश्र कश्मीरी, आगा हश्र कश्मीरी जो है ये ड्रामा में बहुत मशहूर है। इसीलिए इन्हें कहा गया है कि उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर। उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर। तो ड्रामा के अंदर आगा हश्र कश्मीरी बहुत मशहूर हैं। सवाल नंबर 2 पे है कि ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? ड्रामा अनारकली में अनारकली जो है उसका असल नाम क्या है? इसका जवाब है नादिरा। क्या नाम है? नादिरा। अनारकली का असल नाम है, अनारकली एक अदाकारा है, तो अनारकली का असल नाम है नादिरा। नादिरा। सवाल नंबर 3 पे है हुकूमत पाकिस्तान ने किस ड्रामा निगार को सितारा इम्तियाज से नवाजा है? हुकूमत पाकिस्तान ने किस ड्रामा निगार को सितारा इम्तियाज से नवाजा है? इसका जवाब है इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज, यानी इम्तियाज अली ताज को एक अवार्ड है पाकिस्तान में सितारा नाम का। तो सितारा नाम का जो अवार्ड है तो इम्तियाज अली ताज को सितारा अवार्ड से नवाजा गया है। समझ गए? सवाल नंबर 4 पे है ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम क्या है? अनारकली की बहन का नाम सुरैया। क्या नाम है? सुरैया। अनारकली का जो अपना असल नाम है वो है नादिरा और उसकी बहन का नाम है सुरैया। सुरैया बहन का नाम है। सवाल नंबर 5 पे है इम्तियाज अली ताज की मौत किस तरह हुई? इम्तियाज अली ताज की मौत किस तरह हुई? इसका जवाब है कत्ल के हादसे में। कत्ल के हादसे में इम्तियाज अली ताज की मौत हो गई। यानी इम्तियाज अली ताज को ज़बह कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से इम्तियाज अली ताज मर गए। समझ गए? तो इस तरीका से पढ़ाने में ये फ़ायदा होता है कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा और फ़ायदा तो फुल होगा। आगे है सवाल नंबर 6 पे कि ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया?
ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? इसका जवाब है 1922 में। अभी आपने पढ़ा था कि ड्रामा इंद्र सभा 1852 ईस्वी में लिखा गया, लेकिन ड्रामा अनारकली जो है 1922 में लिखा गया, 1922 में लिखा गया है। सवाल नंबर 7 पे है कि दास्तान सबरस में अकल किस मुल्क का बादशाह है? दास्तान सबरस में अकल किस मुल्क का बादशाह है? तो इसका जवाब है सीस्तान। क्या है? सीस्तान। मुल्क सीस्तान का बादशाह अकल। समझ गए? और अकल ही का एक बेटा है जिसका नाम है दिल। दिल जो इलाका तन का हुक्मरान था। और एक है और नजर जो ये अकल का गुलाम है, अकल का गुलाम है। सवाल नंबर 8 पे है कि उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? इसका जवाब है सबरस। क्या है? सबरस। सबरस जो है 1635 ईस्वी में इसको लिखा गया है और इसको लिखने वाले मुल्ला वजी। मुल्ला वजी का असल नाम है असदुल्ला। क्या नाम है? असदुल्ला। मिर्जा गालिब का भी असल नाम है असदुल्ला और मुल्ला वजी का भी असल नाम है असदुल्ला। मुल्ला वजी एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने 4 बादशाहों का दौर देखा है। सवाल नंबर 9 पे है कि इंद्र सभा किसके अहद में लिखा गया है? तो इंद्र सभा जो है वाजिद अली शाह के दौर में लिखा गया है। ड्रामा इंद्र सभा जिसको लिखने वाले हैं आगा हसन अमानत लखनवी, और ये ड्रामा लिखा गया है वाजिद अली शाह के दौर में, वाजिद अली शाह के अहद में। सवाल नंबर 10 पे है ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक होती है? इसका जवाब है सब्ज परी। ये सवाल पहले भी आ चुका है। गोया के ड्रामा इंद्र सभा में 4 परियों का जिक्र किया गया है और 2 देव का जिक्र किया गया है। तो उन्हीं में से एक परी है सब्ज परी, वो शहजादा गुलफाम पर आशिक हो जाती है। सवाल नंबर 11 पे है आगा हश्र काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? आगा हश्र काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो इसका जवाब आफताब मोहब्बत। आफताब मोहब्बत जो ड्रामा है, आफताब मोहब्बत एक ड्रामा की किताब है और इसको लिखने वाले हैं कौन? आगा हश्र काश्मीरी, और ये इनका सबसे पहला ड्रामा है। सवाल नंबर 12 पे है मसनवी सेहरुल बयान का दूसरा नाम क्या है? तो मसनवी सेहरुल बयान जिसको लिखने वाले हैं मीर हसन जिसको लिखने वाले हैं, और मीर हसन का असल नाम है गुलाम हसन, मीर गुलाम हसन। तो मसनवी सेहरुल बयान का जो दूसरा नाम है वो है बद्रे मुनीर। मसनवी सेहरुल बयान का दूसरा नाम है बद्रे मुनीर। सवाल नंबर 13 पे मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? इसका जवाब राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी जिन्होंने लिखा नसीर और खदीजा के नाम से जो अफसाना लिखा था, सबसे पहला अफसाना नसीर और खदीजा, तो उनके मुसन्निफ यही हैं राशिदुल खैरी, और राशिदुल खैरी ही को कहते हैं मुसव्विर गम, मुसव्विर गम। सवाल नंबर 14 पे है कि ऐवान शाही का माना क्या है? ऐवान शाही का माना क्या है? तो ऐवान का माना है महल और शाही के माना शाही, बादशाही। तो ऐवान शाही का माना है शाही महल। क्या माना है? शाही महल। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और फायदा उठाइए, खूब फायदा उठाइए इंशाअल्लाह। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है अगर आप मेहनत करते हैं तो सवाल नंबर 15 पे है ड्रामा किस जबान का लफ्ज है? ड्रामा किस जबान का लफ्ज है? इसका जवाब है यूनानी। ड्रामा जो है यूनानी जबान का लफ्ज है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गजल ये अरबी जबान का लफ्ज है, कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है, मसनवी अरबी जबान का लफ्ज है, दास्तान फारसी जबान का लफ्ज है। तो उसी तरीका से ड्रामा जो है ये यूनानी जबान का लफ्ज है। सवाल नंबर 16 पे है मुंदरजा झैल में सआदत हसन मंटू का लिखा हुआ ड्रामा है। तो इसका जवाब आओ एक ड्रामा का नाम है और इसके लेखक हैं, इसको लिखने वाले हैं सआदत हसन मंटू। समझ गए?
سوال نمبر 17 ہے یہ کس کا خون ہے؟ یہ کس کا خون ہے؟ ڈرامہ کے خالق کون ہے؟ اس کا جواب ہے علی سردار جعفری، علی سردار جعفری۔ یہ کس کا خون ہے؟ یہ صنف کے اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے اور اس کو لکھنے والے ہیں علی سردار جعفری۔ اس لیے آپ لوگ چینل سے آخری ویڈیو آخر تک آپ پوری ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا ایک بھی سوال نہیں چھوٹے گا ڈرامہ سے۔ سوال نمبر 18 پہ ضحاک، ضحاک جو ہے ضحاک ڈرامہ کے خالق کون ہے؟ اس کا جواب ہے محمد حسن، محمد حسن اس کے مصنف ہے ضحاک ڈرامہ کے۔ سوال نمبر 19 پہ ہے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے خالق کون ہے؟ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے خالق کون ہے؟ اس کا جواب ہے آغا حشر کاشمیری، یعنی یہودی کی لڑکی ایک ڈرامہ کا نام ہے اور اس کو لکھنے والے ہیں آغا حشر کاشمیری۔ بہت مشہور ڈرامہ ہے یہودی کی لڑکی۔ 20 پہ ہے مندرجہ ذیل میں کون سا کردار ڈرامہ سے لیا گیا ہے؟ مندرجہ ذیل میں کون سا کردار ڈرامہ سے لیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے نمبر 1 پہ الف پہ ہوری، با پہ جان عالم، جیم پہ ہے دل آرام اور دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اس کا جواب ہے جیم دل آرام۔ دل آرام جو ہے یہ ایک ڈرامہ کا کردار ہے، یعنی کردار کا معنی ہیرو۔ اب یہاں سے تو گویا کہ آپ نے یہ بھی پڑھ لیا، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اردو ڈرامہ اور ڈرامہ نگاری۔ غور سے سنیے، بہت اہم سوال ہے، ایک بھی سوال انشاءاللہ آپ کا نہیں چھوٹے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، فائدہ اٹھا رہے ہیں تو فائدہ بھی دیجئے۔ سوال نمبر 1 پہ ہے کہ حبیب تنویر نے کون سا ڈرامہ لکھا ہے؟ حبیب تنویر نے بہت مشہور ڈرامہ ہے آگرہ کا بازار، جو نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر لکھا گیا ہے۔ حبیب تنویر نے آگرہ کا بازار ڈرامہ لکھا ہے۔ سوال نمبر 2 پہ ہے کہ آگرہ کا بازار پہلی بار کس سن میں پیش ہوا؟ آگرہ کا بازار پہلی بار کس سن میں پیش ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1954 عیسوی میں۔ آگرہ کا بازار جو ڈرامہ ہے سب سے پہلے 1954 میں پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 پہ ہے کہ حبیب تنویر کے ڈرامہ آگرہ کا بازار میں اردو کے کس مشہور شاعر ہیں؟ دیکھیے آ گیا، حبیب تنویر کے ڈرامہ آگرہ کا بازار میں اردو کے کس مشہور شاعر ہیں یا کس مشہور شاعر کا ذکر ہے؟ اس کا جواب ہے نذیر اکبر آبادی کے اوپر یہ ڈرامہ آگرہ کا بازار لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 پہ ہے نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی بنیاد پر ایک یادگار تہذیبی ڈرامہ کس نے لکھا تھا؟ اس کا جواب ہے حبیب تنویر۔ بس وہی بات ہے کہ آگرہ کا جو بازار، آگرہ کا بازار جو ڈرامہ ہے اس کو حبیب تنویر نے لکھا ہے نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی بنیاد پر، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں۔ سوال نمبر 5 پہ ہے آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ بس وہی سوال آ رہا بار بار تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے حبیب تنویر۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے آگرہ بازار۔ سوال نمبر 6 پہ ہے کہ حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار سب سے پہلے کہاں اسٹیج ہوا؟ اس کا جواب ہے جامعہ ملیہ کیمپس، جامعہ ملیہ کیمپس۔ اس کے اندر یہ اسٹیج ہوا کب؟ 1954 عیسوی میں جامعہ ملیہ کیمپس کے اندر سب سے پہلے حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ کا بازار اسٹیج ہوا۔ سوال نمبر 7 پہ ہے حبیب تنویر کے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ مجاور۔ مجاور جو ہے حبیب تنویر کے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ تو اس کا جواب ہے شطرنج کے مہرے، شطرنج کے مہرے۔ مجاور جو ہے ایک ڈرامہ ہے شطرنج کے مہرے، اس کا کردار ہے مجاور۔ اور شطرنج کے مہرے جو ڈرامہ ہے اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ وہی حبیب تنویر ہے، اور حبیب تنویر ہی نے آگرہ کا بازار ڈرامہ لکھا ہے۔ سوال نمبر 8 پہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں نین کس کا ڈرامہ ہے؟
देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? तो इसका भी जवाब है हबीब तनवीर। गोया कि अभी तक आपने पढ़ा कि हबीब तनवीर का जो ड्रामा है वो आगरा का बाजार भी है, शतरंज के मोहरे भी है और देख रहे हैं नैन ये भी है। समझ गए? सवाल नंबर 9 पे है, ड्रामा के लिए किसकी शोहरत है? इसका जवाब आ चुका है, आगा हश्र कश्मीरी जो है ड्रामा के अंदर बहुत मशहूर हैं। सवाल नंबर 10 पे है कि उर्दू ड्रामा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहते हैं? इसका जवाब है आगा हश्र कश्मीरी। आगा हश्र कश्मीरी जो है उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर है। सवाल नंबर 11 पे सिल्वर किंग, सिल्वर किंग जो है किसका ड्रामा है? इसका जवाब है आगा हश्र कश्मीरी। यानी आगा हश्र कश्मीरी का जो सबसे पहला ड्रामा है उसका नाम है आफ्ताब मोहब्बत। यहूदी की लड़की भी इन्हीं का है, सिल्वर किंग भी इन्हीं का है। समझ गए? फिर आगे है कि आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? मैं कह चुका हूं, इसका जवाब है आफ्ताब मोहब्बत जो है आगा हश्र कश्मीरी का सबसे पहला ड्रामा है। सवाल नंबर 13 पे है कि आगा हश्र कश्मीरी कब और कहां पैदा हुए? तो आगा हश्र कश्मीरी कब और कहां पैदा हुए? इसका जवाब है बनारस में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में पैदा हुए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए ताकि हौसला अफजाई हो। सवाल नंबर 14 पे कि अफजल और परवीन आगा हश्र कश्मीरी के किस ड्रामा के किरदार हैं? अफजल और परवीन, तो इसका जवाब है सिल्वर किंग। सिल्वर किंग जो ड्रामा है वो ड्रामा है आगा हश्र कश्मीरी का और इसके किरदार हैं, इसके हीरो हैं अफजल और परवीन, अफजल और परवीन। सवाल नंबर 15 पे है कि आगा हश्र कश्मीरी कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब भी आ चुका है, बनारस में पैदा हुए। कौन? आगा हश्र कश्मीरी। सवाल नंबर 16 पे है ड्रामा यहूदी की लड़की का मुसन्निफ कौन है? इसका भी जवाब आ चुका है, आगा हश्र कश्मीरी। इससे आपको घबराना नहीं है, बार बार आने से आपके जहन में बैठ जाएगा। सवाल नंबर 17 पे है कि आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? इसका जवाब है आफ्ताब मोहब्बत पहला ड्रामा है। 18 पे के परवीन जो है अफजल भी है और परवीन भी है, आगा हश्र कश्मीरी के किस ड्रामे का किरदार है? तो इसका जवाब है सिल्वर किंग। सिल्वर किंग जो है एक ड्रामा है किसका? आगा हश्र कश्मीरी का और अफजल और परवीन जो उसी के किरदार हैं। फिर आगे है 19 पे बेरम और अरसलान आगा हश्र कश्मीरी के किस ड्रामा का किरदार है? इसका जवाब है सफेद खून। सफेद खून के एक ड्रामा है आगा हश्र कश्मीरी का, उसी के किरदार है बेरम और अरसलान। अभी तक आपने पढ़ा कि आगा हश्र कश्मीरी का सबसे पहला ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत, उसके बाद एक और है यहूदी की लड़की, एक और है सिल्वर किंग और एक और है सफेद खून। सफेद खून। 20 पे है तुर्की हूर किसका ड्रामा है? तुर्की हूर किसका ड्रामा है? तो आगा हश्र कश्मीरी ही का ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत, यहूदी की लड़की, सिल्वर किंग, सफेद खून और तुर्की हूर। सफेद खून और तुर्की हूर। सवाल नंबर 21 पे है मुआसिरे अदब के पेशरू का मुसन्निफ है। मुआसिरे अदब के पेशरू एक ड्रामा का नाम है, तो इसके मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन ये वही हैं जिन्होंने ड्रामा ज़हाक को लिखा है और उन्हीं का एक ड्रामा है मुआसिर अदब के पेशरू। मुआसिर अदब के पेशरू। सवाल नंबर 22 पे है ड्रामा ज़हाक कितने मनासिर पर मुश्तमिल है? कितने मनासिर पर मुश्तमिल है? मनासिर यानी सीन, कितने सीन पर मुश्तमिल है? इसका जवाब है 6
6 मनासिर पर मुश्तमिल है। और ड्रामा ज़हाक को लिखने वाले कौन है? मोहम्मद हसन। 23 नंबर सवाल है, कौन नक्काद नजरियाती तौर पर मार्कसी नुक्ता नज़र का हामिल है? कौन नक्काद नजरियाती तौर पर मार्कसी नुक्ता नज़र का हामिल है? तो इसका जवाब मोहम्मद हसन। कम वक्त में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ गए हैं तो। सवाल नंबर 24 पे है, इनमें से किस नक्काद ने ड्रामा निगारी में भी अहम मकाम हासिल किया है? इसका जवाब है मोहम्मद हसन एक नक्काद हैं। इन्होंने ही लिखा है ड्रामा ज़हाक, इन्हीं का लिखा हुआ है, समझ गए। इसी तरीक़ा से मुआसिर अदब के पेशरू भी मोहम्मद हसन ही का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 25 पे है, नौशाबा और फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे के किरदार हैं? तो नौशाबा और फरीदू जो है ये ड्रामा ज़हाक के किरदार हैं और ड्रामा ज़हाक को लिखने वाले हैं मोहम्मद हसन। इसी तरीक़ा से सवाल नंबर 26 पे है कि शेर नौ किसकी तसनीफ़ है? किसकी तसनीफ़ है? तो शेर नौ भी मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है। शेर नौ भी मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है। आपको भागना नहीं है, पूरी वीडियो आपको देख के जाना है। अगर आप अपने माँ और बाप के सपना को पूरा करना चाहते हैं तो। 27 पे है, प्रोफेसर मोहम्मद हसन तनकीद के किस दबिस्तान से मुताल्लिक थे? तो इसका जवाब मार्कसी तनकीद से। प्रोफेसर मोहम्मद हसन जो है तनकीद के कई दबिस्तान है, तो तनकीद के मार्कसी तनकीद जो दबिस्तान है उससे मुंसलिक थे प्रोफेसर मोहम्मद हसन। सवाल नंबर 28 पे है, हयअती तनकीद किसकी किताब है? हयअती तनकीद किसकी किताब है? इसका जवाब मोहम्मद हसन। हयअती तनकीद भी मोहम्मद हसन की किताब है। ड्रामा ज़हाक भी मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है। 29 पे है, फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है? तो फरीदू जो है ये ड्रामा ज़हाक के किरदार हैं। फरीदू मोहम्मद हसन के ड्रामा ज़हाक के किरदार हैं। सवाल नंबर 30 पे, खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है? इसका जवाब मोहम्मद हसन। खून के धब्बे मोहम्मद हसन के ड्रामों का मजमुआ है। सवाल नंबर 31 पे है, हयअती तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो हयअती तनकीद के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन। हयअती तनकीद के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन है। कमेंट किया कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। 32 पे है कि इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? इसका जवाब आफ्ताब मोहब्बत है। आफ्ताब मोहब्बत जो है किनका है? ये है आगा हसर काश्मीरी का सबसे पहला ड्रामा है, तो ये उनका नहीं है। लेकिन फुटपाथ के शहजादे, फुटपाथ के फरिश्ते एक दूसरा है, लेकिन फुटपाथ के शहजादे ये मोहम्मद हसन का है। मोर पंखी मोहम्मद हसन का है, तो ये दोनों इन्हीं का है। सवाल नंबर 33 पे है, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसने तसनीफ़ की है? उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसने तसनीफ़ की है? इसका जवाब है मोहम्मद हसन ने। मोहम्मद हसन ने उर्दू अदब की समाजियाती तारीख की तसनीफ़ की है। सवाल नंबर 34 पे है, हबीब तनवीर की पैदाइश कब हुई थी? इसका जवाब है 1923 ईस्वी में। ये हबीब तनवीर वही हैं जिन्होंने ड्रामा आगरा का बाजार लिखा है। किनके ऊपर लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी की जिंदगी पर लिखा गया है। सवाल नंबर 35 पे है कि नया थिएटर नाम से एक ड्रामा कंपनी किसने खोला था? नया थिएटर नाम से एक ड्रामा कंपनी किसने खोला था? इसका जवाब है हबीब तनवीर। यानी हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा का बाजार भी लिखा है और नया थिएटर नाम से भी एक ड्रामा लिखा था।
सवाल नंबर 36 पे है, ड्रामा आगरा बाजार पहली बार स्टेज कब हुआ था? ड्रामा आगरा बाजार जिसको हबीब तनवीर ने लिखा है, किस पर लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर लिखा है। तो ये ड्रामा आगरा का बाजार पहली बार स्टेज कब किया गया? इसका जवाब है 1954 ईस्वी में। कहाँ किया गया? जामिया मिल्लिया कैंपस में किया गया। जामिया मिल्लिया कैंपस में कब किया गया? 1954 ईस्वी में किया गया। सवाल नंबर 37 पे है, ड्रामा कोहरे का चांद, ड्रामा कोहरे का चांद किसका लिखा हुआ ड्रामा है? इसका जवाब है मोहम्मद हसन ही का लिखा हुआ है। मोहम्मद हसन का लिखा हुआ है ड्रामा कोहरे का चांद। 38 पे है, ड्रामा ज़हाक कितने मनासिर पर मुश्तमिल है? तो इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है। 6 मनासिर पे, 6 सीन पे मुश्तमिल है ड्रामा ज़हाक, और इसको लिखने वाले हैं मोहम्मद हसन। ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा गया था? ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में, किस वक्त में लिखा गया था? इसका जवाब है इमरजेंसी। इमरजेंसी की हालत में ड्रामा ज़हाक को 6 मनासिर पर मुश्तमिल एक ड्रामा लिखा गया। 40 पे है, ड्रामा ज़हाक किताबी शक्ल में शाये हुआ था 1980 ईस्वी में। ड्रामा ज़हाक जो है ये मोहम्मद हसन का है, जिसमें 6 मनासिर है और ये इमरजेंसी की हालत में लिखा गया है। इसको लिखने वाले हैं मोहम्मद हसन। तो ये किताबी शक्ल में 1980 में पेश किया गया था। 1980 ईस्वी में किताबी शक्ल में पेश किया गया था। 41 पे है, रिसाला तहजीब निस्वा और कहकशां का ताल्लुक किससे है? यानी रिसाला तहजीब निस्वा और कहकशां किसका लिखा हुआ है? इसका जवाब है इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ है रिसाला तहजीब निस्वा और कहकशां। 42 पे है, ड्रामा नौशाबा किस ड्रामे का किरदार है? इसका जवाब है ज़हाक। नौशाबा और फरीदू दोनों जो है ये ड्रामा ज़हाक के किरदार हैं। 43 पे है, ड्रामा ज़हाक को सियासी तमसील किसने कहा था? ये कौल है कि ड्रामा ज़हाक को सियासी तमसील का किसने कहा था? तो उसका नाम है ज्ञान चंद जैन ने कहा था कि ड्रामा ज़हाक जो है ये सियासी तमसील है। 44 पे है, गोशे आफियत और शिकस्त ड्रामे का ताल्लुक किससे है? गोशे आफियत और शिकस्त ड्रामे का ताल्लुक किससे है? इसका जवाब है मोहम्मद हसन। यानी मोहम्मद हसन ही का लिखा हुआ है गोशे आफियत भी और शिकस्त ड्रामे भी लिखा हुआ है। एक नावल है शिकस्त के नाम से जो है कृष्णचंद्र को जो है शहनशाह अफसाना भी कहते हैं। तो उन्होंने ही एक नावल लिखा था शिकस्त के नाम से, और यहाँ पर आया है कि गोशे आफियत और शिकस्त जो ड्रामा है वो मोहम्मद हसन का है। 45 पे है, आगा हस्र काश्मीरी का शाहकार ड्रामा कौन सा है? इसका जवाब है यहूदी की लड़की। यानी इसी की वजह से आगा हस्र काश्मीरी मशहूर हुए हैं और इसीलिए कहा गया है शाहकार ड्रामा। तो आगा हस्र काश्मीरी का जो सबसे पहला ड्रामा है वो है आफताब मोहब्बत। एक और ड्रामा है जिसका नाम यहूदी की लड़की जो सामने है। एक और है सिल्वर किंग और है, इसके अलावा और भी है। 46 पे है कि ड्रामा अनारकली का मकाम क्या है? इन ड्रामा जो अनारकली है, ड्रामा अनारकली जो है किसका लिखा हुआ? ये इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ है। तो ड्रामा अनारकली का मकाम है किला लाहौर जो है अभी पाकिस्तान में है। तो वहीं पर उसी मकाम पर ड्रामा अनारकली का मकाम है किला लाहौर। 47 पर है, मार्कस और हैना
یعنی راحیل کس ڈرامے کا کردار ہے؟ اس کا جواب یہودی کی لڑکی۔ مارکس اور حنا ایک کردار ہے، ہیرو ہے، تو وہ ہیرو ہے یہودی کی لڑکی کا جو ایک ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامہ کو لکھنے والے کون ہیں؟ آغا حشر کاشمیری، جو اردو ڈرامہ کا شیکسپیئر کہلاتا ہے۔ 48 پہ ہے ڈرامہ اکبر کے خالق کون ہیں؟ تو ڈرامہ اکبر کے خالق ہے محمد حسین آزاد۔ کون ہے؟ ڈرامہ اکبر کے خالق ہیں محمد حسین آزاد۔ 49 پہ ہے کہ ان میں سے کون سا کردار ضحاک کا نہیں ہے؟ تو الف پر ہے ضحاک، با پہ ہے خاقان، اور 3 پہ نوشابہ، تو اس کا جواب ہے خاقان۔ خاقان جو ہے یہ ضحاک کا کردار نہیں ہے۔ خاقان کیا ہے؟ یہ ضحاک کا کردار نہیں ہے، ورنہ فریدو اور نوشابہ اور ضحاک تو ہے ہی، یہ سب ڈرامہ ضحاک کے کردار ہیں۔ آگے ہیں تو یہیں پر آج کا یہ میراتھن کلاس ختم ہوتا ہے۔ بس آپ اتنا ہی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا ایک بھی سوال اردو ڈرامہ سے نہیں چھوٹے گا۔ اگر ایک بار میں آپ کو یاد نہیں ہوتا ہے، بار بار دیکھیے اور بار بار دیکھ کر اس کو یاد کیجئے، ذہن میں بیٹھائیے اور اچھی طرح اس کو یاد کیجئے، اور اپنی ماں اور اپنے باپ کے سپنا کو پورا کیجئے۔ اسی طریقہ سے میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ اگر اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں بھی شیئر کر دیجئے۔ سبسکرائب کرنے سے، شیئر کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس کام کو ضرور کیجئے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ میں نے کتنی محنت سے اس کو قلم سے لکھا ہے، اور قلم سے لکھ کر کے پھر PDF بنایا، پھر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، تو بڑی جد و جہد کی ہے میں نے آپ کے لیے۔ اس لیے آپ اس بات پہ عمل کیجئے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ پھر ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے میں یہ بھی کہوں کہ آپ اس چینل سے جڑ جائیے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو بھی BPSC کے سلیبس ہے مکمل کر دیا جائے گا۔ اللہ کی ذات سے اتنا امید رکھیے، آپ بھی میں مفتی مشیر الحق قاسمی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔